Okay, let's start today's session. We have covered entities and internal control part yesterday. Now today we have to start nature and extent of para number 13. Nature and extent of understanding of relevant control. When obtaining an understanding of control that are relevant to audit, the auditor shall evaluate the design of those controls and determine whether they have been implemented or not. Like you see a design maintenance of prevented, detected, and corrected. Like you have to implement also, not you have just made that control. Proper implementation is also there, should be there, by performing procedures in addition to inquiry of entity personnel. You have to yourself also, you have to verify that those controls are working itself or not. Either they don't formulate it, just formulation is there and implementation is not there. So let's go to the relevant appendix A72. Evaluating the design of control involves consideration whether the control individually or in combination with other control is capable of effectively preventing, detecting, and correcting. Is capable of effectively, like implementation is there so that it will prevent, detect, and correct the misstatement. Not we have only just formulated that. It should be effectively it should prevently detect and correct the misstatement. That's the main purpose of applying the controls in that area. And implementation of a controls mean that the control exists and that entity is using it. There is little pointing assessing the implementation of control that is not effective. So the design of control is considered first. An improperly designed control may represent a significant deficiency. You also know that if a control is not working properly or improperly designed, like you don't know that CCTV camera is working or not properly, then there should be a deficiency in that control. Like anyone can pass that entry in that area. Like their software is there falling in that area. Like in IT departments, there are various equipments lying there, like IT equipments, you can say laptops, MacBooks, and their multiple accessory. Anyone can steal that if CCTV camera is not working. So that should be the control, no? Like control is there, but that should be properly implemented so that it can prevent, detect, and correct the misstatement. Okay. Risk assessment procedures to obtain audit evidence about the design. What are the risk assessment procedures? RAP. For what? Design and implementation. How you can check the design and implementation of the controls may include inquiry. In the earlier para number A13, it's mentioned that inquiry alone should not be there. Other procedure also we have to perform, like observation, observing the application of specific control, like that a CCTV camera is working or not properly. Inspecting the documents, like documentation is there, like ERP software, they are having the proper document and reporting is there or not. They are having proper documents. Tracing transaction through information system, like I said, you can on sampling basis you can check that their system is working properly or not, and relevant to financial reporting only, because it can relate to other areas also, no? But we have to check while having objective of financial reporting purpose. In next line also, inquiry alone, how is not sufficient for the purpose. What's the chat? Let's see. Is Mudit understanding the exact context of everything? Mudit, are you able, or shall I use Hindi also? I'm understanding. You are understanding, okay. If anyway you are not understanding, you can like I will translate in both Hindi and English mix. If you don't understanding anything, you can ask, note the main purpose, like its main purpose is to understand that firstly. Obtain an understanding of entities control is not sufficient to test obtaining an understanding of entities control is not sufficient for us to test the operating effectiveness. Like we have just obtained the understanding of entities control, like we have obtained the understanding part only, and that's not the sufficient test
मतलब कि मैं जैसे बताऊं कि वो एक सफिशिएंट टेस्ट नहीं है कि हमने खाली उतना ही कर लिया कि हम देख लेंगे कि उसके वो प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, हमने ये भी देख करना पड़ेगा ना, देयर इज सम ऑटोमेशन दैट प्रोवाइड कंसिस्टेंट। अगर मान लो ऑटोमेशन है, जैसे कल एग्जांपल कर रहे थे, अगर ऑटोमेशन है वहाँ पे कंसिस्टेंट ऑपरेशन है पहले से भी, अगर जैसे मान लो हम उसकी उसी की ऑडिट कर रहे हैं, हमें इतना तो चेक होगा कि जैसे यहाँ उनका वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, अगर चेंज हुआ है तो वो दैट सेपरेट पार्ट इशू, सेपरेट इशू। अगर कंसिस्टेंट है बस एक बार हम वापस एक बार चेक कर सकते हैं हाँ उनकी कैलकुलेशन प्रॉपर है कि नहीं, बस अपना सैंपल का साइज थोड़ा डिक्लाइन कर सकते हैं कि हम देख लेंगे बस आउटपुट उनका प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, obtaining audit evidence about the implementation of manual control at a point in time does not provide audit evidence about operating effectiveness of control at other time during the period under audit। कि देखो इसमें क्या करेगा, वापस रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, obtaining audit evidence about implementation of manual control, मैनुअल कंट्रोल की उसकी तो हम अपन कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे, ये ऑडिट एविडेंस वहाँ पे कैसे ले सकते हैं कि उनका कोई कंप्लायंस वहाँ पे उनका कुछ होगा ना, कि अब कैसे मैं तुम्हें एग्जांपल, अब मैनुअल कंट्रोल का जैसे उन्होंने क्या लगा रखा है कि कौन पर्सन को ऑथराइज करेगा, उसकी उन्होंने कुछ बना रखी है कि नहीं बना रखी कोई पॉलिसी वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे। At a point it does not provide audit evidence about operating effectiveness। देखो मैनुअल कंट्रोल की तुम्हें अगर मैं खाली ये दे दूं कि डॉक्यूमेंट है तो मैं पता चल जाएगा कि मैनुअल कंट्रोल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा वहाँ पे। मैं तुम्हें बस डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट हूँ, तुम ऑडिटर हो, मैंने तुम्हें खाली एक पीस ऑफ पेपर दे दिया कि हाँ ये पर्सन ये चीज करेगा, तो मैं इससे खाली रिलायंस हो जाएगा कि वो ऑपरेटिवली इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। No, Right. no. Because manual control you can't see like just by their seeing their documentation or like something like that. We have to assess personally while observing that part. However, because of inherent consistency of IT processing, performing audit procedure to determine whether an automated control has been implemented may serve as a test. Automation control, we can check on sampling basis in automated part, or serve as a test for that control's effectiveness, operating effectiveness. That will as a text of control operative effectiveness. That like see, this is a terminology you can use in your interview. Like we can see like performing audit procedure relating to automated control, we can get that's the test of controls of operating effectiveness itself. Because in big four they check the operating effectiveness of the control firstly, like they have to assess the risk assessment partner, so they will get comfort, or if they get comfort on the operating effectiveness of their control, they will get reliance. And depending on auditor assessment and testing of control, such as those over the program changes, tests of operating effectiveness of control further described in SA 330, auditor response to assess risk। कि हम उसके इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे वो आगे ऐसे 330 हमें डिसाइड करवाएगा कि हम उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल TOC कैसे अप्लाई करना है हम वहाँ पे, वो कंट्रोल्स आगे हमें बताएगा कि हम आगे अब जो हमने रिस्क असेसमेंट एक बार हमने ऑब्टेन कर लिया कि हाँ ये चीज है ये हो गया, उस पर हमने कंट्रोल्स की आगे चेकिंग कैसे करनी है वो वैसे 330 हमें गाइड करेगा। एक बार हम पहले बीच में मटेरियलिटी डिसाइड कर लेंगे, फिर आगे हम देख लेंगे हमें कितने एक्सटेंड तक चेक करना है वहाँ पे, किस किस एरिया में कंफर्ट लेवल लेना है वहाँ पे। पैरा 13 कंप्लीट। Next para 14. Components of IC control environment. Firstly, there are 5 components: CRI, CM, control environment, risk assessment process, information system. Fifth one, which was the fifth one, and 1 minute. By 1 minute. control activities. Control. There is an extra in 13 paragraph. Which we have covered. We have covered A72 to A74. No, last paragraph just we read right now. We have covered what's left in that para. There That's is an covered. extra A74 has been covered. See, one. Yes, here A61 inherent inconsistency. A60 we have covered itself earlier. Oh, okay, got it. The IT benefits. Okay, Yesterday we have covered this. Like first control environment, like we have to, the auditor shall obtain an understanding of control environment. As part of obtaining this understanding, the auditor shall evaluate कि हमें सबसे पहले किसी कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तो हम उसकी इवैल्यूएशन कैसे लेंगे। मैनेजमेंट with the oversight
देखो मैनेजमेंट वर्क करती है, लेकिन ओवरसाइट, उसकी जो ओवरसाइट होगी वो तो TCWG रखेगी। एंटिटी का साइज है वो डिपेंड करेगा क्या वो दोनों सेम है कि अलग अलग पार्ट है। एंड हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन व्हाट अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। क्या कंट्रोल एनवायरमेंट असेस करें ना कि वो वहाँ पे कैसे वर्क करें वहाँ पे, तो हमें ये देखना है कि ना हाँ वो ऑनेस्टी है, एथिकल बिहेवियर कैसे बात करें, हमें थोड़ा दिख जाता है वहाँ पे। The strength in the control environment elements collectively provide an appropriate foundation for the other components of internal control. देखो अगर क्या लिख रखा है स्ट्रेंथ्स, तो हमारा ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर सारा प्रॉपर है, हमें दिख रहा है कि हम ऑनेस्टी के साथ सारा काम कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, तो हमें दिख जाएगा ना कि जो उनके अदर कंट्रोल्स भी होंगे वो प्रॉपरली होंगे वहाँ पे। अगर मान लो तुम्हें दिख रहा है कि हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी अच्छे तरीके से करें, तो हमें थोड़ा रिलायंस हो जाता है कि तुम प्रैक्टिकली भी करोगे तो थोड़ा हमें हाँ जो हो जाता है कि हाँ पर्सन वो सामने सही कर रहा होगा काम। चाहे वो आगे फर्दर जैसे इवेल्युएशन पे हमें कुछ और वो आ सकता है कि ये आता है उसने कुछ एरर्स तो किसी की वजह से आ सकते हैं, क्योंकि जजमेंट होती है कई बार, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, उसको तुम एलिमिनेट 100% तुम कर नहीं सकते, क्योंकि वो सामने वाला भी पर्सन ही है, तो उसकी एरर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो वो फ्रॉड की तरफ कैसे है वो डिपेंड करता है, आगे हमें वैल्यूएशन वो उस वक्त होगी उस सर्कमस्टांस में। Strengths in the control environment collectively provide an appropriate foundation. That's the foundation for other components that will strong give reliance on other parts of that internal control, and whether those other components are not undermined by deficiency, कि वहाँ इससे रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, कि अगर मान लो हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है कि हम प्रॉपरली इवेलुएट करते हैं, TCWG की ओवरसाइट वहाँ पे प्रॉपर है, वो एथिकली कम्युनिकेशन करते रहते हैं अपने मैनेजमेंट के साथ भी, जो भी उनके पीपल मैनेजमेंट है वहाँ पे, तो उनका दिख जाएगा ना कि हाँ प्रॉपरली टाइमली वो सब चल रहा है उनका, कि उनकी पॉलिसीज वगैरह वो सब है प्रॉपर वहाँ पे। अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, 75 जितने होते हैं हम करते हैं 2-3 मिनट और करते हैं, स्टार्टिंग के 2-3 कर लेते हैं डिस्कस। ये 75 कंपोनेंट्स। द कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन एंड एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ TCWG। मैं ये कह रहा था ना कि तुम्हें जो है वो कैसे बात कर रहे हैं अपने पॉलिसी अपने मैनेजमेंट के साथ, कैसे डिस्कस कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड कैसे है, दिख जाता है ना कि सामने वाला कैसे पोलाइटली तुम्हारे साथ बात कर रहा है, अपना किस रूड वे में बात कर रहा है। एम्प्लॉयज के साथ भी वैसे कर सकते हैं, तो कैसे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, कितना कंप्लायंस स्ट्रिक्ट वे में थोड़ा बहुत वहाँ पे होना चाहिए ना, कि जो थोड़ा सीनियर है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो, कोऑपरेटिव भी हो, वहाँ पे हम उसके साथ जैसे मैनेजमेंट के साथ बात करके कर सकते हैं कि सामने वाला कैसा है, तो हम उनके साथ ऐसे डिस्कस करके हमें दिख जाता है ना कि हाँ सामने वाला पर्सन कैसा है, तो हमें उसके साथ कैसे अपनी कम्युनिकेट करके उसे अपनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है फर्दर आगे प्रोसेस ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए, ये हेल्प करता है हमें आगे। ये हमें ऐसे प्रोसीजर हेल्प करते हैं आगे, कि जैसे हम अगर मान लो सामने जो सीनियर जो उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, तुम अब कैसे करोगे जब तुम्हें मान लो उसका बिहेवियर पता होगा कि हम इस टाइप से ऐसे करते हैं, तो मैनेजमेंट से बात करके, जैसे जो TCWG अलग लेवल पे है, मैनेजमेंट से हम बात करके देख लेते हैं ना कि हाँ वो सामने वाला पर्सन कैसा होगा, कि उसके साथ हमें किस लेवल पे मतलब किस लेवल पे जाके हमने कैसे निकालनी है इन्फॉर्मेशन वहां से, तो वो हमें पता चल जाएगी स्टार्टिंग पे कंट्रोल एनवायरनमेंट से। ये आ गया। एन इम्पोर्टेंट, द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ। कितने देखो अगर मान लो सीनियर तुम्हारा अच्छा है कि तुम्हें प्रॉपर्ली टाइम पे बोनस इंसेंटिव एम्प्लॉय को देता रहता है, तो एम्प्लॉयज भी कम सोचेंगे हम क्यों फ्रॉड करें वहाँ पे, क्यों वो करें इंसेंटिव, अगर हमें प्रॉपरली इंसेंटिव मिल रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट उनको एक प्रॉपर मिल रहा है वहाँ पे, तो कोई क्यों करेगा वहाँ पे, वो अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे, तो हमें दिख जाएगा कि हाँ जो उनके पार्ट्स है वो प्रॉपरली चल रहे हैं वहाँ पे। नहीं करा, हम एम्प्लॉय से जाके डिस्कस कर सकते हैं वहां से। नेक्स्ट क्या, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट मे बी रेलेवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। ये इसको थोड़ा कल करेंगे प्रॉपर यहाँ पे, इसको कल करेंगे यहाँ पे बस, वो उसको उतना एरिया क्योंकि वो थोड़ा डीप में अच्छे तरीके से कवर करेंगे ना वहाँ पे। या चलो एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, आगे डीप में जाएंगे क्या हमें चेक करेंगे इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज कि वो प्रॉपर काम करे कि नहीं करे, अपने कॉम्पिटेंस के साथ मतलब कमिटमेंट दे रहे हैं वहाँ पे कि हम पूरा काम कर लेंगे। पार्टिसिपेशन कैसी है कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन करे, अगर TCWG एक्टिवली करती है तो उनका अच्छे तरीके से काम करते हैं ना, प्रॉपर उनका वर्क होगा क्या होगा। फिलोसफी क्या उनकी, जैसे तुम रतन टाटा जैसे सर के साथ देखो वो करोगे, वो कितने उनको तुम सोच सकते हो कि तुमने जितना सुन रखा है वो कैसे अपने एम्प्लॉयज के साथ प्रॉपरली एथिकल बिहेवियर करते हैं, तो उनका वर्किंग स्टाइल वहाँ पे वर्किंग जो भी काम करेगा प्रॉपर करेगा ना, कि देखो कि मेरा एम्प्लॉय या बॉस इतना प्रॉपर वो कर रहा है तो मैं भी अपना करूँ, मैं क्यों करूँ वहाँ पे, प्रॉपरली गाइड करता रहता हूँ टाइमली। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि उनका स्ट्रक्चर कैसे है वहाँ पे, कितने स्ट्रक्चर बन रखे हैं, कैसे कंट्रोलिंग होती है, वो आ गया। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, कितनी असाइनमेंट हो रखी है वहाँ पे, कितनी रिस्पॉन्सिबल आगे ट्रांसफर हो रहा है, कितना डायल्यूशन हो रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर है कि नहीं, हम वो चेक कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की HR पॉलिसीज क्या है,
ये जैसे तुम आर्टिकलशिप में जाओगे तो वहाँ भी होती है, जैसे वो मैं क्लाइंट के पर्पस में वहाँ बात करें तो वहाँ की एचआर पॉलिसीज क्या है, उनको प्रॉपर इंसेंटिव मिल रहा है, किस बेसिस पे मिल रहा है लीव का, वो सब हम प्रॉपर इवैल्यूएशन देखते हैं, ट्रेनिंग हो रही है और प्रोग्राम उनके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इंडक्शन जैसे कोई ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही, कोई नया लो आ रहा है, कोई नया सिस्टम आ रहा है तो उनकी प्रॉपरली टाइमली ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो वो हो गया। देखो मेन तो हम देखो तुमने देखो खुद, अब मैंने अपने डिस्कस किया ऊपर ऊपर से, तो तुम्हें खुद दिख गया होगा ना कि हाँ अगर हम ये चेक कर ले तो हमें सामने से इतना रिलायंस मिलेगा कि वो प्रॉपर एंटिटी वहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रही है, उनका एनवायरमेंट अच्छा है वहाँ पे, कि वो एथिकली करे, कॉम्पिटेंट है, काम करने से, पार्टिसिपेशन है TCWG का, फिलोसफी उनकी अच्छी है, असाइनमेंट वो अपना वो कर रहे हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेग्रीगेटेड है ड्यूटी सारी की ये पर्सन ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए बस है, उनकी HR पॉलिसीज अच्छी है वहाँ पे कि हम उनको लीज प्रॉपर मिल जाएगी, तो वो एम्प्लॉयज खुश रहेंगे वहाँ पे, वो प्रॉपरली इवेलुएट काम करेंगे, तो ये सारी चीजें फिर हम आगे इसके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, कल इसका करेंगे डीप में यहाँ से। कुछ डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट? Once please tell the meaning of significant deficiency. सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी जो थोड़े Yes, लार्ज yes. लेवल पे हो जाती है, जो थोड़े हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती है वहाँ पे, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इसकी तुम ऐसे 265 में भी देख सकते हो, अगर इतना टाइम है मेरे पास तो मैं तुम्हें डेफिनेशन, एक सेकंड, मेरे को शायद टाइम इतना अलाउ ना करे, फिर भी ट्राई करते हैं ऐसे। उनको 265 मिलते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। See this significant deficiency. A deficiency or combination of deficiency in auditor professional judgment is sufficient importance to merit the importance। यहाँ पे तो देखो हमने खाली TCWG के टेंशन में रहता है ऐसे 265 में, तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वही होती है कि जो मान लो थोड़े कॉम्बिनेशन में या खुद भी अपने इतने लेवल पे इंपॉर्टेंट है कि हमें TCWG का ध्यान देना पड़ेगा, सीनियर लेवल पे वहाँ पे कि आपका बहुत पॉलिसी वीक चल रही है यहाँ पे, तो हमें उसका दिखाना पड़ेगा यहाँ कि आपका ये, जैसे मान लो PF का उनको मान लो उन्हें PF डिडक्ट नहीं करे थे, तो उससे लाइबिलिटी मान लो पहले से उनको पता नहीं था कि उन्हें PF डिडक्ट करना है, कई बार हो जाता है, तो मान लो उससे अब लाइबिलिटी इतनी थी कि 1 करोड़ का PF हमने डिपॉजिट ही नहीं करवाया, तो हमें बताना पड़ेगा ना उनको सीनियर को भी वहाँ पे TCWG को कि आपने नहीं करवाया ये, तो उनका टेंशन वहाँ पे क्रिएट करवाएंगे वहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी है वो भी। वैसे सर्कमस्टांस डिपेंड कर सकती है क्या सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी होगी। और कुछ? Means material weakness. Then material weakness is